Namaskar, myself Dr. Jayamala, Department of Mathematics, Chaudhary Charan Singh University, Meerut. I am here with my lecture series on mechanics. Today in this lecture, I'll discuss about the principle of virtual work. Actually, we are proceeding towards the Lagrangian mechanics, from Newtonian mechanics to Lagrangian mechanics. In Newtonian mechanics, we basically stress on forces, and we'll see that how in Lagrangian mechanics forces are not to be considered. So there are certain concepts which will be used in Lagrangian mechanics which we are introducing from our last lecture. In a lecture I have introduced the generalized coordinates, which is one concept which will be used in Lagrangian mechanics. Then I introduced you the virtual displacement that will again be used in the process of Lagrangian mechanics. So in my last lecture, I told you about the virtual displacement. And I told you that a displacement is called virtual if certain conditions are satisfied. Now, what were those conditions? The first condition was that in a system of particles, the constants should not be violated when your system is moving. That means if your configuration changes, then the constants should not be violated. The second condition was that the constant forces should not be violated. Those forces should remain the same even after the change in the configuration. And the third condition was that even if there is a change in configuration, but there should be no change in time. And you have seen that this condition is so much unrealistic, but still, to derive certain principles which are useful in the real life, we have to make certain assumptions. So this is a sort of assumption that time is not changing, but there is some motion. So under these three conditions, if some displacement occurs, then that displacement is called virtual displacement, जहाँ पर टाइम फ्रीज हो जाए, टाइम चेंज ना हो, या आप कहें कि सिस्टम फ्रीज हो गया तो एक इंस्टेंट पर फ्रीज हुआ, फिर हम कह रहे हैं कि मोशन हो गया पर टाइम चेंज नहीं हुआ. So that type of system, that type of displacement is called virtual displacement. And now from that virtual displacement, we'll move to principle of virtual work. First of all, what is this principle? This principle says that virtual work done by the applied forces on a system of particles in equilibrium. That means the system of particle is in equilibrium, and the virtual work done by the applied forces on the system is zero. Then the work done by the if the work done by the constant forces is zero, then the virtual work done by the applied forces will be zero. तो पहले मैं फोर्सेस के बारे में आपको बताऊंगी तो ये और स्टेटमेंट क्लियर होगा कि हमारे जो फोर्सेस होते हैं किसी सिस्टम पर, जो इम्पोज्ड होते हैं फोर्सेस या इंटरनली अप्लाइड फोर्सेस होते हैं, वो कौन कौन से फोर्सेस होते हैं. तब हम इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे कि यदि कांस्टेंट फोर्सेस ने जो वर्चुअल वर्क किया वो जीरो हो जाए, फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस होते हैं वो भी उनके द्वारा जो वर्क किया जाएगा, वर्चुअल वर्क किया जाएगा, वो भी जीरो होता है. तो इसका मतलब सबसे पहले इसकी कंडीशंस क्या है वो लिख लेते हैं. फर्स्ट कंडीशन इज दैट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. On a system of particles. This is first condition, right? यहाँ लिखा है ना, in equilibrium. System is in equilibrium. That means forces are in equilibrium. Number 2, और इसको ऐसे ही लिखा जाता है, system is in equilibrium or the forces are in equilibrium. Number 2, this is given. This is given condition. Work done by the constant forces. यहाँ पर मैं इसको virtual work लिख देती हूँ.
virtual work done by the constant forces is zero. This is another assumption. Then you have to prove that virtual work done by applied forces. This simply means the externally applied forces is also जीरो. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है. तो हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं. कंसीडर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स this is a system of n particles. Now before proceeding to this principle, to derive this principle, I would like to mention one example, an example which will show you that in real life there exist the situations, there exist the motions where the work done by the constant forces are zero. तो उसके बाद हम इसको आगे करेंगे. पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ऐसी कौन सी कैसे ऐसी एक सिचुएशन हो सकती है. हालांकि हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं जो अनरियलिस्टिक होती है, पर ऐसी सिचुएशन होती है. जैसे हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है. ठीक है. इसके ऊपर दो मासेस हैं, एक मास m1 और एक मास m2. These are two masses. This is m1, तो m1g इसकी फोर्स हो गई ड्यू टू ग्रेविटी, इसका जो वेट है. एंड सपोज दिस इज m2, राइट. एंड दीज टू masses आर टाइड विद वन स्ट्रिंग. ये पुली है और ये एक स्ट्रिंग से टाइड है. ये जो स्ट्रिंग है दिस इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. अगर ये नीचे जाएगा तो उतना ये ऊपर जाएगा. इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है. अब इसमें क्या क्या फोर्सेस होंगे. यहां पर टेंशन होगी स्ट्रिंग में, इसमें भी टेंशन होगी. इस m2g के दो कंपोनेंट्स होंगे. इसको हम ये ले लेते हैं, सपोज ये थीटा है और ये बीटा है. तो mg का एक कंपोनेंट होगा अलोंग द सरफेस जहां वो मूव कर रहा है पार्टिकल, और एक होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा. दिस विल बी m2g sin थीटा एंड दिस विल बी m2g cos थीटा. अब ये जो मास है, क्योंकि ये एक सरफेस के टच में है, तो एक कांस्टेंट पैदा हो गई, ऑब्स्टिकल पैदा हो गया सरफेस की वजह से. तो एक कांस्टेंट फोर्स होगी, और कांस्टेंट फोर्स जो होती है हमेशा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, जो हम पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं. तो सपोज दिस इज द कांस्टेंट फोर्स n2 which is perpendicular to this surface. इसी तरह जो मास 2 है, इस मास के लिए m2g के दो कंपोनेंट्स होंगे, वन अलोंग द सरफेस और दूसरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अलोंग द सरफेस m2g sin बीटा और परपेंडिकुलर टू द सरफेस m2g, sorry this is m1 not m2, this is m1, m1g cos बीटा. ठीक है. ये जो मास है ये भी एक सरफेस के टच में है, तो इसके भी परपेंडिकुलर एक फोर्स होगी, एंड दैट फोर्सेस n1. ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप देखिए कि कैसे जो कांस्टेंट फोर्सेस हैं उनका कंट्रीब्यूशन जीरो होगा. कांस्टेंट फोर्सेस से जो वर्चुअल वर्क होगा वो. तो पहले हम ये मान लेते हैं कि ये जो मास है ये थोड़ा सा नीचे आ गया. इस मास की एक नई पोजीशन बन गई और ये मास मूव करके नीचे आ गया. ये मास यहाँ पर आ गया, ये इसकी नई पोजीशन है मास की. तो इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल की, लेट दैट डिस्टेंस भी
डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका डेल्टा आर टू। ठीक, नेचुरली इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये नीचे आया तो ये वाला मास ऊपर चला गया, और यहां जाने पर इसने भी एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट दिस डिस्टेंस भी डेल्टा। अभी हम सेम नहीं ले रहे हैं, अभी हम अलग अलग ले रहे हैं, ये डेल्टा आर वन हो गया। ठीक, ये नई सिचुएशन है इन मासेस की, ये नई सिचुएशन है, यहाँ पर मास है और ये यहाँ पर मास है। अब देखिए इसमें क्या क्या फोर्सेस हैं, इनमें क्या क्या फोर्सेस लगे हुए हैं मासेस में। कांस्टेंट फोर्सेस देखते हैं हम, क्योंकि हमें कांस्टेंट वर्चुअल वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्सेस ही देखना है। कांस्टेंट फोर्सेस हुए हम फॉर m2 ले रहे हैं, इधर वाला जो पार्टिकल है। तो एक तो ये है आपकी कांस्टेंट फोर्स n2, और दूसरी कांस्टेंट फोर्स क्या है, ये क्योंकि टाइड है, रस्सी में है, तो रस्सी में जो टेंशन होगी वो इसको कांस्टेंट कर रही है, तो ये कांस्टेंट फोर्स है। और ये जो m2 जी है ये एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये इनके कांस्टेंट फोर्सेस हो गए। नाउ वर्चुअल वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स n2। जब हम वर्चुअल वर्क को डिफाइन कर रहे हैं, ये वर्चुअल वर्क है, तो कैसे डिफाइन होगा, यदि हम एक्चुअल वर्क की बात करें, एक्चुअल वर्क की बात करें तो हम एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो हम लिखेंगे dw। dw का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ dr क्या है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, हमें अब वर्चुअल की बात करनी है, तो मैंने इस डेल्टा को यूज किया है जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था। तो ये डेल्टा w कितना हो जाएगा, फोर्स कितनी है n2 डॉट, साथ में इस फोर्स की वजह से कौन सा डिस्प्लेसमेंट है n2 डॉट डेल्टा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, दिस इज डेल्टा आर। इसको खोल दो, n2 डेफिनेशन लगा दी हमने, डेल्टा आर टू। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन n2 एंड डेल्टा आर टू, आप यहाँ पे देखिए क्या एंगल है दोनों के बीच में, ये है n2, ये दिस इज n2 एंड दिस इज r2 डेल्टा r2। दोनों कैसे हैं आपस में, 90 डिग्री पर है। तो जब ये दोनों 90 डिग्री पर है तो क्या बनेगा इसकी वैल्यू, cos 90, so its value is 0. Now let us see at the contribution due to t. Work done, virtual work done by t, this will be t dot delta r2 modulus of t modulus of delta r2, and what is dot product, यानी what is the angle between the t and delta r2। ये देखिए यहाँ पर ये है t, this is the direction of t and this is the direction of delta r2, so both are in opposite direction, one in this direction, one in this direction। तो एंगल कितना हो गया 180। अगर 180 एंगल है तो ये हुआ cos 180, so it is minus t, and what is delta r2, let it be delta r। मैंने ये कहा कि डेल्टा r2 इज इक्वल टू डेल्टा r, तो ये आ गया अब एक वर्चुअल वर्क डन बाय द स्ट्रिंग टेंशन। अब हम लेते हैं कांस्टेंट फोर्सेस फॉर ऑन m1। क्या क्या है ये कांस्टेंट फोर्सेस, यहाँ पर कांस्टेंट फोर्सेस है n1 और साथ में है सब स्ट्रिंग टेंशन t। नाउ व्हाट इज वर्चुअल वर्क डन बाय n1, फोर्स n1 बाय डेफिनेशन एंड डेल्टा r1, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, दिस इज डेल्टा r1, दिस डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा r1। now angle between n1 and delta r1, again this angle between n1 and delta r1, both are perpendicular to each other, so this will be 0, n1 delta r1 cos 90, so it is 0। likewise virtual work done by t, it is t dot delta r1, this is t delta r1। now look at the angle between the two, t and delta r1, this is delta r1 and this is also t, both are in the same direction,
So angle between the two is 0. So it is cos 0. So T, and take this delta R1 as delta R because both are same, because delta R1 is equal to delta R2 is equal to delta R. तो कितनी वैल्यू आ गई? T डेल्टा R. ये चौथा है. अब हम चारों को जोड़ देते हैं. सम ऑफ ऑल द कांस्टेंट फोर्सेस लेना है. ये 0 है, ये माइनस टी डेल्टा आर है, ये फिर 0 है और ये टी डेल्टा आर है. तो सम कितना हुआ? 0. सम ऑफ virtual work done by the constant forces is 0. तो हमने ये जो प्रिंसिपल हम निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वो हम ऐसी सिचुएशंस के लिए निकाल रहे हैं जहां पर ऐसा कुछ हो कि वर्चुअल वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्सेस 0 हो जाए. तो ये हम अब इसमें इंप्लीमेंट करेंगे जो हमारा सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स है. हमारा जो सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स है उसमें अब हमने क्या कहा, हमने एक सिस्टम ले लिया, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, और अब फोर्सेस लिए. लेट एफ आई बी द फोर्स ऑन ith पार्टिकल. इसको ऑन ना कह के रिगार्डिंग ith कहिए क्योंकि कुछ फोर्सेस इंटरनल भी हैं. रिगार्डिंग ith पार्टिकल. ठीक है. तो एफ आई में क्या क्या है? पहली बात तो कंडीशन क्या है कि सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, एफ आई इज 0 फॉर ऑल आई. ठीक है, क्योंकि हर पार्टिकल के लिए ये बात इंप्लीमेंट होगी, तभी वो पूरे सिस्टम पर इंप्लीमेंट होगी. एंड दिस इंप्लाइज एफ आई डॉट डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई if delta Ri is the virtual displacement of ith particle. ठीक है. नाउ दिस इज इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल. आपने एक पार्टिकल के लिए F1 डेल्टा R1 लिया, दूसरे के लिए F2 डेल्टा R2, तीसरे के लिए F3 डेल्टा R3. सबको जोड़ दीजिए. जब अलग अलग 0 है तो ओवरऑल 0 हो गया. और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जो 0 हो रहा है ना, इसमें जब मैं इसे इवन ये लिख रही हूँ सिग्मा एफ आई डेल्टा आर आई इज 0, सम कर दिया हमने सबको. दिस इज फॉर द सिस्टम, फॉर द होल सिस्टम. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ ये अलग अलग अभी भी 0 है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस एक्सप्रेशन में, आपने एक्सप्रेशन ऐसे देखा होगा ना, ए आई सी आई 0, इफ ए आई सिग्मा ई 0 एंड A1 sigma C1 A2 C2 plus A3 C3 is 0, then there is condition on A1 A2 A3 whether these are 0 or these are not 0. ऐसे हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में जब हम इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स बताते हैं. इसी तरह से जब हम ये एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो इस एक्सप्रेशन में ये जो तुम्हारे एफ आई है ये सब 0 है. ठीक है, फॉर ऑल आई. यहां से ये जो है ये क्या बता रहा है? दिस इंप्लाइज वर्चुअल वर्क डन बाय फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज 0. लेकिन हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें ये नहीं लाना था, हमें लाना था वर्चुअल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्सेस इज 0. अब हम देखेंगे इस एफआई में कौन कौन है. जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि जो हमारे फोर्सेस थे उसमें क्या क्या थे. स्ट्रिंग की टेंशन थी, फिर उसके बाद सरफेस पे जो कांस्टेंट फोर्स है वो लगी हुई थी, फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो लगी हुई थी. आप ऐसे देखिए इसमें जो फोर्सेस हैं, ये एक फोर्स थी कांस्टेंट फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स. आप देखिए ये कांस्टेंट फोर्स थी, ये कांस्टेंट फोर्स थी, ये कांस्टेंट फोर्स थी, ये कांस्टेंट फोर्स थी,
फिर N1 कांस्टेंट फोर्स थी, ये एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के काफी सारी फोर्सेस लगी हुई थी, जिसमें कांस्टेंट फोर्स है, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस हैं ग्रेविटी के वजह से। तो ऐसे ही अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे इस Fi में क्या क्या है। Fi contains externally applied forces, उसको हम नाम दे देते हैं, ये हम ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं अभी। एक तो ये फोर्स होगी, नंबर 2 कांस्टेंट फोर्सेस, से इसका हमने नाम दे दिया स्मॉल fi फॉर ith पार्टिकल। और तीसरी होगी इंट्रा पार्टिकल, इंट्रा पार्टिकल बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर इम्पोज करेगा और वो दूसरा पार्टिकल रिवर्स में वापस उसके ऊपर इम्पोज करेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो जो इंट्रा पार्टिकल फोर्सेस हैं इसको हम कह देते हैं Fij, ith पार्टिकल पर jth। बट what will be sigma of Fij? This will be 0 due to Newton's third law of motion. ये हमने बात की फोर्सेस की। तो हमने जो ये बनाया है 1, इसमें अब हम इन फोर्सेस को रख देते हैं, इन फोर्सेस का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम रख देते हैं। Therefore 1 implies Fi की जगह हमने क्या रख दिया, इस Fi की जगह सिग्मा Fia यानी एक्सटर्नली अप्लाइड प्लस Fi यानी कि कांस्टेंट फोर्सेस डेल्टा Ri इज 0। खोल दीजिए इसको, Fia डेल्टा Ri प्लस Fi डेल्टा Ri is 0। Now we go back to our statement of the principle। यहाँ पर हमने कहा है कि वर्चुअल वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्सेस इज 0। तो हम ठीक है इसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट द वर्चुअल वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्सेस बी 0। तो ये 0 हो जाएगा, यही है वर्चुअल वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्सेस, दैट इज लेट सिग्मा Fi डेल्टा Ri इज 0। तो यहाँ जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकेंड में क्या आ जाएगा, सिग्मा Fia डेल्टा Ri इज 0। क्या है ये बाय डेफिनेशन, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ये अप्लाइड फोर्सेस है, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बना, वर्चुअल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्सेस। तो हम आ गए उस रिजल्ट पर, दैट इज वर्चुअल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्सेस, इसको अप्लाइड फोर्सेस ही बोल देते हैं खाली, is 0। So we are here at principle of virtual work, but there is one more thing। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने पहले बताया था कि जब तक हम ये लिख रहे हैं तब तक हमारा मतलब ये है कि हर Fi 0, हर ith पार्टिकल के लिए सम ऑफ फोर्सेस 0 है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिविजुअली ये 0 है, यहाँ पर नहीं है ये वाला मतलब, क्योंकि वहां तो हमने हर पार्टिकल के लिए लिखा और उसको ऐड किया था, और जब हर पार्टिकल के लिए लिख रहे थे तब हर पार्टिकल पर Fi 0 था, F 0 था इक्विलिब्रियम में होने की वजह से। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट आया है ये ठीक है, ये स्टेटमेंट है, पर ये स्टेटमेंट ये बिल्कुल नहीं कहता कि ये जो Fi है ये अलग अलग 0। एक और इम्पॉर्टेंट बात प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में जो एक कंडीशन हिडन होती है वो ये कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होनी चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्सेस शुड बी एब्सेंट। अब ऐसा क्यों कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्सेस एब्सेंट होनी चाहिए,
तो इसे मैं आपको वापस एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स हुई तो वो कांस्टेंट फोर्सेस के वर्चुअल वर्क को जीरो नहीं कर पाती है। ठीक है, कैसे? आप ये देखिए कि हमने एक सिस्टम बनाया था ऐसे करके। इसमें मैं ये कहूँ कि आपका जो पार्टिकल है वो न्यू मूव कर रहा है एक डिस्टेंस, हमने इसे डेल्टा आर कहा था, और ये पार्टिकल इधर को मूव कर रहा है, इसे हमने भी डेल्टा आर कहा था वापस। ठीक, अब सपोज फ्रिक्शन फोर्स होती, सपोज, तो यहाँ पर तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे काम करती, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम करती इस डायरेक्शन, इसको मैंने कह दिया एफ म्यू वन, और यहाँ पे क्योंकि ऑपोजिट में होती है फ्रिक्शन, जिधर मूवमेंट होता है, यहाँ पे ऐसे होती है एफ म्यू टू। ठीक है, जो बाकी फोर्सेस थे उनके कंट्रीब्यूशन हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब हम इनका अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो वर्चुअल वर्क डन बाय म्यू वन माने ये वाली फ्रिक्शनल फोर्स, तो कितना हुआ एफ म्यू वन डॉट प्रोडक्ट बाय डेल्टा आर, ये बना एफ म्यू वन डेल्टा आर एंड बोथ आर ऑपोजिट cos 180 माइनस इसमें एफ म्यू कह रही हूँ डेल्टा आर, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, इसी तरह मैंने निकाला वर्चुअल वर्क डन बाय दूसरी जो विस्कस फोर्स है, तो दिस इज फोर्स इनटू अगेन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम बता चुके हैं सेम होगा, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो दिस इज एफ म्यू टू डेल्टा आर, अगेन द एंगल इज 180, both are in opposite direction, so it is minus f mu 2 डेल्टा। अब सपोज ये और ये बराबर हो जाए, तो इवन बराबर होने पर भी ये इसको नहीं काट रहा है। आप ये देखो, ये भी नेगेटिव सिंबल में और ये भी नेगेटिव सिंबल में, दोनों में नेगेटिव सिंबल है, तो कैंसिल नहीं कर रहा ना, और कंडीशन कह रही है कि कांस्टेंट फोर्सेस का वर्क डन, वर्चुअल वर्क डन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल है वो उन्हीं कंडीशंस में लगेगा जहां पर फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होंगी। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे वर्चुअल वर्क का जो स्टेटमेंट है वहां पर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं कि एंड frictional, there are no frictional forces, no frictional forces. So this is all about principle of virtual work.